Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So before we start, important update regarding the online batch. So we have started an online batch on 20th May, and this batch is an evening batch which is scheduled for 7:30 to 9:30, and this would be mentored by Mukul sir for VRC, Hemant sir for LRDI, and Amit sir for Cons. So very quickly, let's start with the agenda. So let's start with set number 6 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then move to the solution. So this is a arrangement based set which I've taken from previous year's SimCat, and the set says 9 guests Arav, Bhavya, Charvi, Dev, Isha, Farhan, Gauri, Harsh, and Isha are staying at a resort. Each guest is assigned a unique room number from 1 to 9. The rooms are allocated in two parallel corridors, five with 5 rooms in each corridor facing each other. One room is vacant while the remaining 9 rooms are occupied by the guest in some order. The following information is known about the room allocation. Isha occupies the middle room in the north-facing corridor. Farah stays to the left of Gauri. Isha is assigned room number 2. The guests occupying the extreme rooms of the north-facing corridor have consecutive room numbers. Harsh is assigned room number 9 and stays directly opposite to vacant room. The guest staying in room number 5 occupies the room opposite Gauri and faces north. Isha and Farhan occupy room opposite to each other and having consecutive room numbers. Dev's room is not consecutive to Arav's room number. Arav stays third to the right of Isha. Gauri and Charvi occupy the extreme room of the south-facing corridor. Their room numbers are consecutive. Charvi's room number is higher than Gauri's room number. Dev is assigned to room number 3 and faces south. Arav does not stay adjacent to the vacant room. Exactly 3 room numbers lie between Harsh room and Bhavya's room. एक बार क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है which of the following does not belong to the group. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है which of the following is not who is assigned room number 5. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है who stays immediately to the right of vacant room. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है who stays directly opposite to Arav. ठीक है. एक लीनियर अरेंजमेंट का सेट लग रहा है अपने को, जहाँ पे पढ़ने पे, जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि 9 कैरेक्टर्स हैं और उनको कुछ रूम नंबर्स दिए जो कि एक कॉरिडोर के 5 नॉर्थ में 5 साउथ में वो अपने को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. सो हाउ टू स्टार्ट. ऐसा एक सॉल्यूशन के लिए पहले एक टेबल बना लेते हैं कि मान लेते हैं ये कॉरिडोर है, यहाँ पे 5 रूम है, यहाँ पे 5 रूम है. अब इन 10 रूम के बारे में बोला गया कि जो इनका रूम नंबर्स है वो 1 से लेके 9 के बीच में होने वाला है और एक इसमें वैकेंट होने वाला है. और 1 से जो 9 होने वाला है वो एक सम ऑर्डर में होने वाला है. वो ऑर्डर क्या है यहाँ पे डिफाइंड है. मतलब ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं है. वो एक अलग ऑर्डर में, उसके बारे में अपने को पूरी यहाँ पे कहानी दे रखी है. ठीक है. जनरली ऐसे सेट के अंदर क्या होता है कि तुम्हें बुलेट पॉइंट्स दिए होते हैं जहां से तुम सारी चीजों को निकाल देते हो, बट यहाँ पे पैसेज के फॉर्म पे दिया हुआ है. तो यहाँ पे पैसेज में से सारी चीजें जो रिक्वायर्ड चीजें वो निकालना वुड बी अ टफ टास्क, वुड बी इनफैक्ट अ पेनफुल टास्क. ठीक है. बट चलते हैं, करते हैं. ईशा ऑक्यूपाइज द मिडिल रूम ऑफ द नॉर्थ फेसिंग कॉरिडोर. ठीक है. ये कॉरिडोर है, तो यहाँ पे ये सब रूम जो हो गए साउथ वाले, ये हो गए मेरे नॉर्थ वाले. ठीक है. ईशा के बारे में बोला हुआ कि ईशा ऑक्यूपाइज द मिडिल रूम ऑफ द नॉर्थ फेसिंग. तो यानी कि ईशा कहाँ पे है, यहाँ पे है. यहाँ पे अपने को पहला कैरेक्टर मिला ईशा. फरहान स्टेज टू द लेफ्ट ऑफ गौरी. कोई फरहान है जो कि गौरी के लेफ्ट पे रहता है, तो फरहान गौरी के लेफ्ट पे रहता है. इमीडिएट लेफ्ट बोला होता तो मैं क्या करता, इसको सर्कल पे डाल देता, बट क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला तो बस इसको मैं ऐसा ओपन रख देता हूँ. ठीक है. अब ऐसा हो सकता है कि गौरी इधर, लेफ्ट में फरहान इधर, या गौरी इधर, लेफ्ट में फरहान इधर. ठीक. ईशान इज असाइंड टू ईशा इज असाइंड टू रूम नंबर 2. अच्छा, कोई और कैरेक्टर है ईशा जो कि रूम नंबर 2 जिसको असाइन करा गया. The guests occupying the extreme room of the north-facing corridor have consecutive room numbers. अच्छा, ये रूम नंबर और ये रूम नंबर जो है वो है consecutive रूम नंबर है. ठीक है. ऐसा मैं बना लेता हूँ कि भाई इनका कुछ consecutive है, मतलब 1 और 3, 1 और 2 हो सकता है, 2 और 3, 3 और 4, ऐसा कुछ. हर्ष is assigned to room number 9 and stays directly opposite to room vacant room. ठीक है. कोई कैरेक्टर है हर्ष जो कि रूम नंबर 9 पे रहता है और उस किसके अपोजिट बैठता है, वो वैकेंट के रहता है. तो वैकेंट रूम नंबर 9, वैकेंट रूम नंबर 9, ऐसा. ठीक है. वैकेंट रूम नंबर 9 ऐसा कुछ आ सकता है. ठीक है. द गेस्ट स्टेइंग इन रूम नंबर 5 ऑक्यूपाइज द सेम रूम अपोजिट सम रूम अपोजिट टू गौरी एंड फेसेस नॉर्थ. अच्छा, जो रूम नंबर 5 वाला गेस्ट है वो गौरी के अपोजिट रहता है और वो नॉर्थ देखता है. यानी कि रूम नंबर 5 वाला बंदा इधर रहना चाहिए था, तो यानी कि गौरी को भी इधर रहना चाहिए था, तभी वो पॉसिबल है. क्योंकि गौरी इधर है तो फरहान भी इधर ही रहेगा, क्योंकि अपने को पता क्या था, गौरी के लेफ्ट में फरहान रहता है. ठीक है. तो गौरी के लेफ्ट में फरहान को होना तय है, क्योंकि ये लोग नॉर्थ साउथ देख रहे हैं.
तो गौरी के लेफ्ट में फरहान इधर कहीं आना चाहिए। ठीक। अच्छा, द guest staying in room number 5 occupies the room opposite to Gauri and faces north. Isha and Farhan occupy room opposite to each other. ईशा और फरहान ऐसे हैं जो कि अब एक दूसरे के अपोजिट वाला रूम लेते हैं, यानी कि अगर फरहान यहाँ पे तो ईशा को इसी में आना चाहिए, तभी वो पॉसिबल है। तो एक और कैरेक्टर यहाँ पे मिल गया, वो कौन है? ईशा। यानी कि ये वाली ईशा और ये आई वाली ईशा दोनों ही नॉर्थ कॉरिडोर के अंदर, नॉर्थ फेसिंग कॉरिडोर के अंदर, रूम्स के अंदर है। ठीक है, थोड़ा और पढ़ते हैं। Gauri faces north and Isha and Farhan occupy room number opposite to each other and having consecutive room numbers. इनका रूम नंबर भी consecutive है, यानी कि ईशा का रूम नंबर अगर 2 है तो फरहान का रूम नंबर क्या होना चाहिए? फरहान का रूम नंबर हो जाएगा रूम नंबर 1 या रूम नंबर 3। ठीक। Dev's room number uh, Dev's room number is not consecutive to Arav's room number. Arav stays third to the right of Isha. अच्छा, क्योंकि ईशा यहाँ पे हो सकती है तो 1 2 3 आरव यहाँ हो सकता है। ईशा यहाँ हो सकती है, आरव 1 2 3 हो सकता है। ईशा यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि वो आई वाली ईशा के बारे में बात हो रहा है। सो ईशा के लिए पॉसिबिलिटी ये 2 बन सकता है और आरव के लिए पॉसिबिलिटी ये 2 बन सकती है। ठीक, थोड़ा और पढ़ते हैं। Arav says third to the right of Isha. Gauri and Charvi occupy the extreme room of the south facing room. गौरी और चारवी को यहाँ पे देना है। ओके, अगर गौरी को यहाँ देते हैं तो यार लेफ्ट में तो फरहान आ ही नहीं पाएगा, यानी कि गौरी को जो कॉर्नर देना वो ये देना पड़ेगा। यहाँ से अपने को पहला क्लिक करा, सो गौरी को यहाँ देना पड़ेगा एंड चारवी को यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक, आई होप ये पॉइंट समझ आएगा। फिर से पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है कि गौरी एंड चारवी जो है साउथ फेसिंग वाले पे एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे रह रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि गौरी के लेफ्ट में फरहान रह रहा है। लेफ्ट मतलब वो ये तो नहीं होता ना, वो ये होता है, क्योंकि साउथ फेसिंग है, ये ध्यान देना। गौरी को अगर यहाँ दोगे तो लेफ्ट में तो कोई भी नहीं रह पाएगा। ठीक, अब फरहान कहाँ हो सकता है? इधर इधर इधर, तीनों में से कोई एक जगह पे फरहान हो सकता है। ठीक, दियर रूम्स आर कंसेक्यूटिव। अच्छा, गौरी और चारवी का रूम भी कंसेक्यूटिव है। दियर रूम आर कंसेक्यूटिव, चारवी रूम नंबर इज हायर देन गौरीज रूम नंबर। ठीक, चारवी का जो रूम नंबर है वो गौरी के रूम नंबर से ज्यादा है। ठीक है, देव इज असाइंड टू रूम नंबर 3 एंड फेसेस साउथ। अच्छा, कोई देव है जो कोई रूम नंबर 3 मिल गया और वो साउथ देखता है। अच्छा, देव को रूम नंबर 3 मिल गया तो फरहान को रूम नंबर 1 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे रफ वर्क में दिख रहा है। सो फरहान के लिए भी रूम नंबर 1 अपने को मिल गया। ठीक है, सो अभी क्या पता है, फरहान रूम नंबर 1 भी इधर है, देव भी इधर ही है। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स अपने को सदर्न वाले, साउथ वाले मिल गए। ठीक, आरव डज नॉट स्टे एडजेसेंट टू द वैकेंट रूम। आरव जो है वैकेंट रूम के एडजेसेंट नहीं रहता। एक्सट्रीमली एग्जैक्टली 3 पीपल लिव बिटवीन द हर्ष एंड भव्य's रूम। ठीक है, अब मैंने क्या करा ना, फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग करने के बाद इतनी चीजों को फिगर आउट कर लिया। ठीक, क्योंकि कुछ बुलेट पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो मैं तो टिक कर लेता, तो सब कुछ ऐसा पैसेज के फॉर्म पे, एस्से के फॉर्म पे दे दिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से कार को टर्न करके पॉइंट नंबर 1 से चालू करना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। नाउ सेकंड राउंड ऑफ रीडिंग में आई विल गेट एंटायर सॉल्यूशन, या मे बी थर्ड राउंड ऑफ रीडिंग रिक्वायर्ड होगी, उससे ज्यादा नहीं। चलो, ईशा ऑक्यूपाइज मिडिल रूम कर लिया। फरहान स्टेज टू द लेफ्ट ऑफ गौरी, आइडेंटिफाई करा हुआ है कि गौरी और फरहान को इधर कहीं होना चाहिए। ईशा इज इन रूम नंबर 2 लिख रखा है। द गेस्ट ऑक्यूपाइंग स्ट्रीम कर लिया, यहाँ पे हाईलाइटेड है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं तो हाँ, ये भी पॉइंट हाइलाइटेड है। हर्ष रूम नंबर 9 दे रखा है, वैकेंट पे रहता है, लिख रखा है। गेस्ट स्टेइंग इन रूम नंबर 5 ऑक्यूपाइज द रूम अपोजिट टू गौरी। ओके, गौरी के अपोजिट कौन है? रूम नंबर 5 है। ठीक है, अगर ये रूम नंबर 5 है तो यानी कि ईशा को इन दोनों में से कहीं एक जगह पे अपने को पता था, और ईशा क्या है? रूम नंबर 2 वाली है, तो यानी कि रूम नंबर 2 और ईशा यहीं पे होना पड़ेगा। ठीक, अपने को मिल गया, बिकॉज रूम नंबर 5 यहाँ पे है तो रूम नंबर 2 और ईशा को यहाँ होना पड़ेगा। अच्छा, अपने को ये मिल गया तो यानी सी ए भी मिल सकता है। और ईशा और ए के बारे में क्या दिया हुआ था? ईशा के थर्ड, आरव सिट्स थर्ड टू स्टेज थर्ड टू द राइट ऑफ ईशा, तो यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आरव को आना चाहिए था। ठीक, अपने को यहाँ पे आरव भी मिल गया। ऑल्सो अपने को पता था कि ईशा और फरहान एक दूसरे के सामने रहते हैं। ईशा एंड फरहान ऑक्यूपाइज रूम अपोजिट टू ईच अदर, तो यानी कि ईशा यहाँ पे है तो फरहान यहाँ पे मिल गया। और फरहान कौन है? रूम नंबर 1 वाला बंदा है, तो अपने को ये भी मिल गया। अब पता है देव है, देव इधर रह सकता है। अपने को ये भी पता है कि कोई हर्ष रूम नंबर 9 वाला जो कि वैकेंट पे होगा, तो वो ये नहीं हो सकता, वो ये नहीं हो सकता, वो ये नहीं हो सकता, वो यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कोई रूम नंबर 9 वाला बंदा जो कि वैकेंट के अपोजिट होना चाहिए था, यानी कि देव को यहाँ देना पड़ेगा। तो देव मिल गया यहाँ पे, जो कि है रूम नंबर
3 वाला। सो यहाँ पे क्या मिला? वैकेंट, रूम नंबर 9 और वैकेंट, यानी कि यहाँ पे जो पूरे बचे में कैरेक्टर है वो कौन है? भव्या, जिसको कि यहाँ पे होना चाहिए था। सही, बढ़िया बन गया। अच्छा, अपने को ये भी पता था कि आरव जो है एक लाइन था ना, आरव वैकेंट के बगल में रहता है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या बोला था? आरव डज़ नॉट स्टे, अच्छा, डज़ नॉट स्टे एडजेसेंट टू द वैकेंट। आरव जो है वैकेंट के बगल में नहीं रहता। अगर ये वैकेंट के बगल में नहीं है तो वैकेंट यहीं पे देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे अपने को मिल गया वैकेंट। खत्म। तो यानी कि यहाँ पे कोई नहीं रह रहा, यानी कि इसके अपोजिट किसको देना पड़ेगा? हर्ष को, जो कि है रूम नंबर 9 वाला बंदा। सही। अच्छा, अपने को पता था कि ये भव्य और ये जो आरव है, यानी कि साउथ फेसिंग वाले, ये लोग क्या हैं? एडजेसेंट कंसेक्यूटिव रूम पे रहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? रूम नंबर 4 या रूम नंबर 6 को होना चाहिए था। ठीक, आरव के इधर। अच्छा, अब अपने को रूम नंबर्स हैं जो आइडेंटिफाई करने बाकी हैं। आई थिंक लार्जली ये तो निकल ही गया है। अगर रूम नंबर भी मिल जाते हैं तो अपना सीन सॉर्टेड है, बिकॉज़ डायरेक्ट क्वेश्चन है तो रूम नंबर भी मिलने चाहिए। ठीक है, लेट्स गो फॉर द रीडिंग। यहाँ पे बोला था हर्ष रूम नंबर 9 था, अपोजिट है, तो गेस थिंग यहाँ से कर लिया था। ईशान फरहान कर लिया था। देव रूम नंबर इज नॉट कंसेक्यूटिव टू आरव रूम नंबर। देव और आरव का रूम नंबर कंसेक्यूटिव नहीं, यानी कि यहाँ पे रूम नंबर 4 नहीं होगा, ये क्या होगा? रूम नंबर 6। ठीक है। अच्छा, अब अपने पास क्या पता? गौरी और चार्वी के बारे में पता था, इनका भी एडजेसेंट है, जिसमें से अपने को क्या दिया हुआ था? सी हैज बेट, मतलब हायर रूम नंबर देन गौरी। ठीक है, तो यानी कि वो क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4 बच रहा है, 5 इज गॉन, 6 इज गॉन, 7 और 8 बच रहा है बस। तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? रूम नंबर 8, और यहाँ पे आना चाहिए था रूम नंबर 7, क्योंकि चारवी का जो रूम नंबर है वो हायर था, याद है ना? चारवी रूम नंबर इज हायर, तो यहाँ पे कौन बच गया? यहाँ पे बच गया रूम नंबर 4, एंड दैट इज हाउ वी कंप्लीटेड द सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार ये क्लास लाइन उससे कंफर्म कर लेते हैं। एग्जैक्टली थ्रू 3 रूम लाई बिटवीन हर्ष एंड भव्या's रूम। हर्ष और भव्या के बीच में 3 रूम अपने को दिखते हैं। हर्ष का रूम नंबर कौन सा? 9, और इसका भव्या का 5 है। तो 6, 7, 8 अपने को दिख रहा है। ठीक। सो ये अपना यहाँ से सेट का हो गया सॉल्यूशन। लेट्स जंप टू द क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट हैज बीन आस्क्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप? ग्रुप में क्या नहीं है? आरव, आरव, चारवी इधर है, हर्ष इधर है, भव्या इधर है, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए था? चारवी। क्यों? आरव, हर्ष और भव्या आर 3 पीपल हु आर नॉर्थ फेसिंग, एंड चारवी समवन हु इज साउथ फेसिंग। हु इज असाइन्ड टू रूम नंबर 5? रूम नंबर 5, रूम नंबर 5 ये रहा, भव्या। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? रूम नंबर 5 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। हु स्टेड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ वैकेंट? वैकेंट, इसका राइट, इसका राइट मतलब ये वाला पार्ट, ये लेफ्ट है। वैकेंट में कौन है? देव है ना? तो क्या होना चाहिए? नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली वर्ड यूज किया हुआ है। एनीवेज ये भी अगर इमीडिएटली नहीं होता तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन अपने को नहीं लड़ रहा था। हु सिट्स डायरेक्टली अपोजिट टू आरव? आरव के अपोजिट कौन है? आरव जो है रूम नंबर 6 वाला बंदा है। गेस्ट स्टेइंग इन रूम नंबर एडजेसेंट टू रूम नंबर 2? नहीं, ऐसा तो नहीं है। द गेस्ट स्टेइंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ वैकेंट? इमीडिएटली टू द राइट ऑफ वैकेंट, वैकेंट का राइट तो यार ये हुआ, ये तो लेफ्ट है, ये भी नहीं होना चाहिए। नो, द गेस्ट स्टेइंग एग्जैक्टली बिटवीन भव्या एंड चारवी, नहीं ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ दिस। ठीक है, सो मॉडरेट सेट, इजी से मॉडरेट, इनफैक्ट लर्निंग के हिसाब से अच्छा सेट है, खासकर बिगिनर्स के लिए बढ़िया सेट है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन पैसेज के फॉर्म में, तो उसको कैसे निकालना और पेशेंटफुली आपको ये चीजों को निकालना, वुड हैव बीन चैलेंज फॉर देम। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।